Assalamu alaikum everybody. Today in this video lecture we are going to discuss about state legislature. As we are already done with union legislature, today in this video lecture we will discuss about state legislature. What is state legislature? Is state legislature uniform across India or are there variations? And which are the states where bicameralism is existing, and the names of states where there is only one house, where there is unicameral system in place. So state legislature occupies a central position in the political system of the state, like that of जैसे union legislature जिसे हम कहते हैं parliament occupies a central position as far as the national government is concerned, as far as the country is concerned. और in the same way जो state legislature होता है, it occupies a central position in the state. और state के related state legislature के related जो भी constitution में provisions है, articles है, that are dealt under part 6 of the Indian Constitution, which is from article 152 to 237. But as far as the state legislatures are concerned, ये यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस इंडिया. कहीं पे हमें देखने को मिलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स और कहीं पे हम देखते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, ये ऐसे स्टेट्स है जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. व्हेन आई से बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इट मींस द लेजिस्लेचर इज हैविंग टू हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस, अपर हाउस, विधानसभा, विधान परिषद. और व्हेन आई से यूनिकैमरल सिस्टम, presently in India 20 states have unicameral system in place, unicameral legislature in place, wherein there is just legislative assembly. ठीक है. तो as far as the legislature of the state is concerned, when you have bicameral legislature, it means it comprises of or it consists of, इसमें कौन कौन होते हैं? गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल. हाँ. State legislature in case of bicameral system consists of governor, legislative assembly, legislative council. State legislature in case of unicameral system, it comprises of गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली. ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर्स जहां पे यूनिकैमरल सिस्टम है, यूनिकैमरल का मतलब एक ही हाउस है, तो उसमें उस यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में कौन कौन से ऑफिस आते हैं? एक आता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली. तो तभी मैंने कहा कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स, or there is no uniformity in India as far as state legislatures are concerned. Now let us see which are the states who are having bicameral legislature. अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहां से आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसी तरीके से कर्नाटका. साउथ इंडिया में आते हैं, नॉर्थ इंडिया में आते हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है और बिहार है. These are the 6 states having bicameral legislature. जम्मू एंड कश्मीर का भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर था टिल 2019, बट आफ्टर 370 वाज अब्रोगेटेड एंड विद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो अब यहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं रहा. हाँ, 6 states having bicameral legislature in India are Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। ठीक है, ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं। और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर स्टेट। फॉर एग्जांपल यूपी है, यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 मेंबर्स है। और अगर आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड सिक्किम के लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली 32 मेंबर्स है। व्हाई? बिकॉज it is basically derived from the population, it depends on the population of the state। ठीक है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पे सारी चीजें डिपेंड है। जैसे कि यूपी इज वन ऑफ द पॉपुलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, तो उसके पास सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है। और सिक्किम में कम पॉपुलेशन है, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग लेस नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। So this was just an introduction about state legislature. So now the question is, why some states have bicameral legislature and why some states have unicameral legislature? ठीक है, we will try to answer it. हाँ, the question is, why some states have bicameral legislature while others have just unicameral legislature? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है टू एबॉलिश और क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए प्रोविजन फॉर creation and abolition of legislative council। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन रखा गया है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकते हैं और आप इसको एबॉलिश भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन एबॉलिश क्रिएट करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट कैन। सो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू क्रिएट एंड एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, टू क्रिएट एंड एबॉलिश द सेकंड चेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या पार्लियामेंट के पास यहां पे अपनी क्या कैन पार्लियामेंट क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन इट्स ओन विल, ऑन इट्स ओन चॉइस? नो। इफ द legislative assembly of the concerned state passes a resolution to this effect with special majority, then parliament can take action। ठीक है, तो यहां पे मानो जो कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो किस पे डिपेंड, कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो किस पे डिपेंड है? लेजिस्लेटिव असेंबली पे। हाँ, देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए कंसर्न्ड स्टेट पासेस ए रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी, शाबाश, कल हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज पढ़ी है। स्पेशल मेजॉरिटी विद 2/3 ऑफ मेंबर्स, विद 2/3 स्पेशल मेजॉरिटीज, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट पास करेगी एक रेजोल्यूशन टू क्रिएट और एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिएट कहां पे होगा, किया जा सकता है? जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा वहां पे बना सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन अगर ऑलरेडी कहीं पे है, फॉर एग्जांपल यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तेलंगाना में है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट
चाहती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें नहीं होना चाहिए या हम इसको एबॉलिश करना चाहते हैं, तो दे कैन डू दैट, ठीक है। दे कैन पास ए रेजोल्यूशन एंड दे कैन एबॉलिश इट। तो एबॉलिश कौन, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी पास रेजोल्यूशन, और एबॉलिश कौन करेगा या क्रिएट कौन करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। और इसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये जस्ट माना जाता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। हाँ, for the creation and abolition of the legislative council states have choice। states के पास choice है। states में भी कहां पे, state की legislative assembly जो है उसके पास choice है if they want to create or abolish the legislative council। हाँ, legislative assembly को क्या करना है, it has to pass a resolution with special majority। स्पेशल मेजॉरिटी आप लोगों को मालूम है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ, अगर एज्यूम कर लो हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वहां पे लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनिकैमरल सिस्टम है, वो स्टेट है। एज्यूम दैट हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और अब ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया, अब पार्लियामेंट हैज टू नोटिफाई नाउ, ठीक है। पार्लियामेंट को अब इसके लिए पार्लियामेंट फिर फाइनल फाइनल नोटिफिकेशन इशू का, प्रेसिडेंट फिर फाइनल नोटिफिकेशन इशू करेगा टू फॉर द क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेकिन पहले लेजिस्लेटिव असेंबली को पास करना होगा एक रेजोल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां पे मिसाल दी है, मान लो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन टू फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन इट वेंट टू पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ने इसको नोट दिया और फाइनली लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो महाराष्ट्र में है अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल, एज्यूम दैट the legislative assembly of Maharashtra has passed a resolution with special majority to abolish the legislative council, ठीक है। to abolish the legislative, उनको abolish ही करना है, उनको जरूरत ही नहीं है, तो it will go to the parliament और parliament finally इसको abolish करेगा। और parliament finally इसमें क्या होता है, president notification issue करता है। तो अब मसला है कि ऐसा क्यों है, why this choice was given to the states for the creation and abolition of legislative assembly, ठीक है। तो ये प्रोविजन है, ठीक है, ये प्रोविजन है। अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहेगी दे कैन क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस दे डू नॉट हैव, और अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहेगी दे कैन अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ इट एग्जिस्ट्स देयर। ये जो आइडिया ऑफ सेकंड चेंबर है, आइडिया ऑफ सेकंड चेंबर या जिसे हम कहते हैं विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वाज क्रिटिसाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। 1, it is not representative of the people, it is not representative of the people. Number 2, it delays the legislative process, delays the legislative process, it delays the legislative process. For example, अगर ordinary bill है, it can it can withhold the ordinary bill for 6 months. अगर मनी बिल है ये उसमें भी 14 दिन लगा सकते हैं, ठीक है, वो आएगी ना, वो डिले, इट कैन डिले द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो इसी तरीके से एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन है, एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन है। एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज जैसे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को प्रिविलेजेस, सैलरी या अदर एमोलमेंट्स देने हैं, इन द सेम वे यू हैव टू प्रोवाइड सेम एमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस, ठीक है, एंड फैसिलिटीज एंड सैलरी टू द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑन दीज 3 ग्राउंड्स
ये जो आइडिया ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेकंड चेंबर स्टेटस में रखना है, इसको क्रिटिसाइज किया गया था, बिकॉज पहले कहा गया कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसमें डायरेक्टली लोग उनको चुनते हैं। लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन ये जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे? थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेंबर्स, ग्रेजुएट्स या टीचर्स। ठीक है, तो इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। दूसरा, इट डिलेज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अगर आपके पास यूनिकैमरल हाउस है, आपको खाली लेजिस्लेटिव असेंबली से किसी बिल को पास करना है एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू द गवर्नर। लेकिन अगर आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो आपके पास और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज अगर आपने कोई बिल पास किया लेजिस्लेटिव असेंबली में, देन यू हैव टू गेट इट पास्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकता है? इट कैन डिले द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसके पास भी फिर पावर्स आते हैं। और तीसरा, ये एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन है। एक्सपेंसिव कैसे है? बिकॉज आपको लाइक दैट ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यू हैव टू प्रोवाइड सैलरी, एमुलमेंट्स, प्रिविलेजेस, ठीक है, एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल। सो इट इज एन एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन। सो अब इस पे क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हुआ एंड देयर वाज द कंट्राडिक्शन ऑफ आइडियाज अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फाइनली क्या कहा गया? फाइनली a provision was kept there. A provision was inserted in the constitution that it is up to the states, it is up to the willingness of the states whether they want to have legislative council or not. ठीक है, तो यहां पे स्टेट्स यहां पे इस इशू को सॉल्व कैसे किया गया है? स्टेट्स were given choice, states were given choice, स्टेट्स को चॉइस दी गई है। ठीक है, सो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी स्टेट में कैसे होगा? ऑन द विल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखनी होगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट, क्योंकि एज्यूम दैट अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही पास करेगी रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसी तरीके से इनमें ये भी देखेंगे कि वेदर वी हैव एनफ रिसोर्सेज, ठीक है, वेदर वी हैव एनफ रिसोर्सेज दैट वी कैन अफोर्ड सच दैट वी कुड अफोर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, वी कुड अफोर्ड टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब स्टेट्स के पास अपनी चॉइस है, और तभी हम इंडिया में देखते हैं कि वी डू नॉट सी uniformity across India as far as state legislatures are concerned. We see that some states, only 6 states in number, have bicameral legislatures, while as rest of the states have unicameral legislatures, because इसमें will of the legislative assembly भी देखनी है, प्लस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट भी देखनी है। तो स्टेट्स गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, स्टेट्स देखते कि वेदर वी हैव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वेदर वी हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज to provide facilities, pay, salary वगैरह लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। ठीक है, तो तब ये प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि मैं आई वांट टू प्रोवाइड यू a recent example. In 2010 तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली passed a resolution for the creation of legislative council, क्योंकि तमिलनाडु में नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उन्होंने पास किया रेजोल्यूशन। अभी इसके पार्लियामेंट को इट वाज इन द प्रोसेस इन पार्लियामेंट, और इन 2011 दे पास्ड अनदर रेजोल्यूशन टू अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उनको लगा कि हमें जरूरत नहीं है, या क्यों ऐसा एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन रखेंगे विच इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है, विच डिलीज आवर लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड विच इज एन एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीजें जहन में रखकर तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2011 में एक रेजोल्यूशन पास किया विद स्पेशल मेजॉरिटी wherein they have abolished legislative council. Now तो अब आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि इन केस ऑफ बाइकैमरल सिस्टम, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट्स ऑफ
अगर बाइकैमरल सिस्टम होगा शाबाश, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन केस देयर इज यूनिकैमरल सिस्टम, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट्स ऑफ गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. और आपको ये भी जो मैंने इसकी स्टेट्स बताई है आपको, जहां पे बाइकैमरल सिस्टम है, जहां पे बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्टेंस में है और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं है, ठीक है, प्लस यूटीज में भी नहीं है. पहले हम ब्रीफली लेजिस्लेटिव असेंबली को देखेंगे, ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली का समहाउ इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ लोकसभा, ठीक है. लोकसभा में जिस तरीके से होता है वैसे ही सेम इज अगर इलेक्शन का प्रोसीजर हो या कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, the way we have read, the way we have studied in Lok Sabha, in the same way is followed in Legislative Assembly. पहले ही Legislative Assembly जो होती है डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. दूसरा पॉइंट, इसमें जो इलेक्टोरल सिस्टम यूज किया जाता है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जहां पे देखा जाता है, हम यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं देखते हैं. अंडर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वी सी द प्लूरलिटी ऑफ वोट्स. हम देखते हैं अगर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 मेंबर्स, 3 कंटेस्टेंट्स है, 3 कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया, हम देखते हैं इनमें से किसको वोट ज्यादा आए हैं और द पर्सन हु सिक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है. और दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो रखी गई है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500, मतलब 500 से ज्यादा हम नहीं रख सकते मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली. और मिनिमम है 60, ठीक है, मिनिमम है 60. और इट वेरीज बिटवीन 60 एंड 500. और ये डिपेंड किस पे करता है, ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट. देखिए यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा सीट्स. इसी तरीके से सिक्किम देखिए, सिक्किम में सबसे कम सीट्स, ओनली 32 सीट्स. क्यों? बिकॉज साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन यूपी इज हायर, ठीक है, और साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन सिक्किम इज लोअर, ठीक है, वो वहां पे कम है, लेस है. और इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs, ठीक है. SCs और STs के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है. तो दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. और तभी मैंने आपको कहा कि बाय एंड लार्ज इट रिजेंबल्स द लोकसभा, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, प्लस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज होता है, ठीक है. और अब खाली वेरिएशन है इन द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है. इट्स द seats in the legislative assemblies of different states varies because it depends on the size of the population. अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा सीट्स होंगे. अगर किसी स्टेट की कम पॉपुलेशन है तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली की कम सीट्स होंगी, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी कम सीट्स होंगे. लेकिन ये जो यहाँ पे मिनिमम मैंने कहा ना 60, इसमें एक्सेप्शन है गोवा, अरुणाचल प्रदेश के केस में वहां पे मिनिमम रखा गया 30, ठीक है, वहां पे 30 है. गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मिनिमम है 30. अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रोविजन था दैट गवर्नर कुड नॉमिनेट 2 वुमेन members to the legislative assembly. अगर उसको लगा कि women are not adequately represented, ठीक है, तो गवर्नर उसमें दो औरतों को नॉमिनेट कर सकता था. Now let us see legislative council.
लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली को माना जाता है लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या इसके लिए हिंदी वर्ड है विधानसभा। याद रखना, विधानसभा बहुत दफा पूछा गया है एज ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं विधान परिषद, और इसको हम कहते हैं सेकंड चेंबर। ठीक है। एज फार एज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इज कंसर्न, इसका जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्टली, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। दूसरा, यहां पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में जो ये ना इलेक्टोरल सिस्टम यूज किया जाता है वो है proportional representation by means of single transferable vote। हाँ, अगर इसमें किसी को डाउट है, यू कैन गो टू चैप्टर 3 जहां पे हमने इलेक्शंस को डिटेल में पढ़ा है, जहां पे हमने इलेक्टोरल सिस्टम उसको पढ़ा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे अलग एक वीडियो लेक्चर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे एक अलग वीडियो लेक्चर है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लिए यूज करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, और इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन में भी कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब मसला है कि स्ट्रेंथ, इसके कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डिपेंड करते हैं किस पे? ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। लेकिन उसको अब मिनिमम रखा गया है 60 और मैक्सिमम रखा गया है 500, और मिनिमम है इन केस ऑफ गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ओनली 30 ही। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश जो है, सॉरी आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में है 175 मेंबर्स। 175 मेंबर्स। तो मैंने आपको कहा ऑलरेडी कि स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। देखिए आंध्र प्रदेश की हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में है 175 मेंबर्स। अब आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? देखिए हमें करना है 1/3 × 175। ठीक है, वो ये होगा ना 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो ये निकलेगा 58। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पे मैंने आपको तेलंगाना की आंध्र प्रदेश की एग्जांपल दिया है। आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में है 175 सीट्स, और उसका हमें 1/3 निकालना है लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ के लिए, तो इट विल बिकम 175/3, तो वो निकलेगा 58। तो दिस वाज अबाउट स्ट्रेंथ। लेकिन इसमें भी एक तो इसमें ये प्रोविजन है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन मिनिमम भी रखा गया है। मिनिमम नंबर्स, मिनिमम है 40 सीट्स। ठीक है, 40 यू हैव टू कीप 40 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट बी लेस देन 40 मेंबर्स। बट ये जो 40 मेंबर्स का केस था, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर व्हेन वी वर हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, व्हेन वी वर द स्टेट। ठीक है, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, बट ये जो प्रोविजन ऑफ 40 मेंबर्स, मिनिमम 40 मेंबर्स, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर
बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वी वर फॉलोइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में खाली 36 मेंबर्स थे। हाँ, तो हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में शाबाश इलेक्शंस होंगे इनडायरेक्टली, जहां पे कॉमन पीपुल विल नॉट गो टू वोट। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कॉमन सिटीजन वोट करता है, ठीक है, जो जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर होती है वो वोट डालता है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। लेकिन जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होगा, सिंस दिस इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, यहां पे मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो यहां पे कौन वोट डालते हैं? जो कॉमन लोगों ने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, खुद वही रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं वही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनते हैं। और प्लस जो यहां पे इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक मैनर ऑफ इलेक्शन, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें देखना है। मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, इसको हमें अलग से क्यों पढ़ना है? बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ मेंबर्स चुनने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कुछ मेंबर्स चुनने हैं, इसी तरीके से जो ग्रेजुएट्स होते हैं, डोमिसाइल ग्रेजुएट्स, उनको कुछ मेंबर्स चुनने हैं, इसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं नॉट लेस देन इन रैंक देन द सेकेंडरी लेवल टीचर, ठीक है, उनको कुछ मेंबर्स चुनने हैं। तो यहां पे एज फार एज द मैनर ऑफ इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कंसर्न, तो यहां पे 1/3 ऑफ मेंबर्स, 1/3 ऑफ मेंबर्स, इनको इलेक्ट कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, 1/3 members of the legislative council will be elected by legislative assembly. Number 2, 1/3 members of legislative council will be elected by municipalities, by the members of municipalities or district boards. हाँ, अगर आप इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने अभी आपको करके दिया है कि आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 175। अगर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स निकालने होंगे तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है 1/3 इंटू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आंध्र प्रदेश के कितने मेंबर्स हैं? 175। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आंध्र प्रदेश का, तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 58 मेंबर्स। तो अगर हम यहां पे देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है? 1/3 इंटू 58, तो वो नियरली आएगा, नियरली 19 मेंबर्स, ठीक है, 19 मेंबर्स। इसी तरीके से अगर हमें ये निकालना होगा कि जो मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, वो कितने मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करेंगे, हमें क्या करना होगा? 1/3 इंटू 58, तो ये भी आएगा नियरली 19। तो तीसरा प्रोविजन जो है 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो कि डोमिसाइल्स होंगे वहां पे। तो इसी तरीके से 1/12 को कौन इलेक्ट करेगा? टीचर्स हु आर द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड इन टीचर्स की रैंक नहीं होनी चाहिए बिलो सेकेंडरी लेवल स्कूल टीचर, ठीक है। तो ये है मैनर ऑफ इलेक्शन। जो रेस्ट रहते हैं, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। और उनकी नॉमिनेशन किस बेसिस पे होते हैं? नॉमिनेशन के लिए किन मेंबर्स को लिया जाता है? दोज मेंबर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन, फॉर एग्जांपल इन लिटरेचर,
who are well versed in literature, इस तरीके से आर्ट, साइंस है और सोशल सर्विस, ठीक है, और प्लस द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और नॉमिनेटेड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पे अब लेकिन एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप ज्यादा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी उसी हिसाब से होगी, उसी का 1/3 होगा, और अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की कम मेंबरशिप है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी उसी का 1/3 होगा, तो दैट मीन्स उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर्स कम होंगी। तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। So before we conclude, so let us have a brief relook what we have done so far. Today in this lecture we have discussed about state legislature, और state legislature में मैंने आपको कहा कि state legislature occupies a central position in this state political system, और state as far as ये जो state legislatures होते हैं ये uniform नहीं होते across India, across states, because in some states we see bicameral legislatures और in some states we see unicameral legislatures, और those states wherein there are bicameral legislatures मैंने आपको उनके नाम बताए हैं, you have to keep those names in mind। और देन मैंने आपको कहा कि ये जो सेकंड चेंबर है या विधान परिषद जिसे हम कहते हैं, इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुआ है। सम मेंबर्स वर क्रिटिसाइजिंग द प्रोविजन ऑफ हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, और फिर क्या हुआ, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा गया है कि इट इज अप टू द विलिंगनेस एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट वेदर टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट, ठीक है। तो देन स्टेट्स को यहां पे चॉइस दी गई है whether if they want to have legislative council or not, तो उन पे डिपेंड होता है, और देन उसके लिए उनको रेजोल्यूशन पास करना होगा विद स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए कल का लेक्चर देखिए जहां पे मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। तो स्पेशल मेजॉरिटी विद 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो उसके बाद हमने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली विच रिजेंबल्स द लोकसभा, ठीक है, जो बाय एंड लार्ज लोकसभा से रिजेंबल होता है। और देन लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपने पढ़ा है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। यहां पे जो इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ कितनी होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मैनर ऑफ इलेक्शन है, मैनर ऑफ इलेक्शन में आपने पढ़ा कि जहां पे जिस तरीके से यहां पे मैंने लिखा है 1/3 ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और इसी तरीके से 1/12 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, और ये ग्रेजुएट्स कौन होने चाहिए, डोमिसाइल ग्रेजुएट्स, अपने ही स्टेट के बाशिंदे। और इसी तरीके से 1/12 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर टू बी इलेक्टेड बाय टीचर्स, ठीक है, और ये टीचर्स शुड बी अबव द सेकेंडरी लेवल। तो जो रेस्ट होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और उनको किस चीज पे नॉमिनेशन किया जाता है, बिकॉज दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, एंड दे हैव स्पेशल नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं पे लगता है कि कहीं पे कंफ्यूजन है, कहीं पे डाउट है और कहीं पे क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।